ایم کیو ایم پاکستان کی 8 سال بعد عزیز آباد جناح گراؤنڈ میں انٹری۔ ایم کیو ایم آج عزیز آباد جناح گراؤنڈ میں یوم تشکر منائے گی۔ تقریب سے کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور دیگر خطاب کریں گے۔ بات کر لیتے ہیں شعیب مختار سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں عزیز آباد کے جناح گراؤنڈ میں موجود ہوں اور ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد آج اس گراؤنڈ میں جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کراچی میں سب سے زیادہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں حاصل کرنے والی جماعت بن چکی ہے۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی کراچی سے 25 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ اگر بات کی جائے سندھ سے تو ایم کیو ایم نے سندھ سے قومی اسمبلی کی 17 اور صوبائی اسمبلی کی 28 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان 2013 کے مینڈیٹ واپس لیتی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ 2018 کے مقابلے میں ایم کیو ایم پاکستان نے اضافی سیٹیں لی ہیں اور اس سلسلے میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اس کامیابی پر آج یہاں پر جشن منایا جائے گا، یوم تشکر منایا جائے گا۔ اس جشن کے موقع پر یہاں پر ایک پروقار تقریب کا بھی انعقاد کیا جائے گا، جس سے کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال و دیگر خطاب کریں گے، جبکہ جشن کے سلسلے میں جناح گراؤنڈ میں یہاں پر سنگرز بھی آئیں گے، میوزیکل نائٹ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے اس گراؤنڈ کی تو یہ وہ گراؤنڈ ہے 2016 کے بعد سے یہاں پر کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوئی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو نہ ہی یہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ ہی یہاں پر کوئی پریس کانفرنس کرنے، کوئی اجتماع کرنے کی اجازت تھی۔ تو اس کامیابی پر کراچی کی عوام گھروں سے نکلے، جناح گراؤنڈ میں پہنچے اور آج اس جشن میں اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہو۔ جی شہر قائد میں سندھ اسمبلی پر بھی پتنگ کی اونچی اڑان۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کے نتائج ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے۔ تمام نتائج کے فارم 47 جاری کر دیے گئے۔ ایم کیو ایم نے 25 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی۔ پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں کو 10-10 جبکہ جماعت اسلامی کو 2 سیٹیں ملی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اور پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے بھی میدان مار لیا۔ شہر قائد میں سندھ اسمبلی پر بھی پتنگ کی اونچی اڑان۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کے نتائج کے فارم 47 جاری کر دیے۔ کراچی میں ایم کیو ایم اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آ گئی، 27 سیٹیں اپنے نام کر لیں، جبکہ جماعت اسلامی کے ہاتھ صرف 2 نشستیں آ سکیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے پی ایس 129 سے کامیابی حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی پی ایس 105 سے اپنی نشست جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے یوسف بلوچ نے پی ایس 107 سے کامیابی سمیٹی۔ پیپلز پارٹی نے ضلع ملیر کی 6 میں سے 5 نشستوں میں میدان مار لیا، صرف 1 نشست آزاد امیدوار کے ہاتھ آئی، جبکہ شہر بھر سے نشستوں کے حصول میں ایم کیو ایم نے تمام جماعتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان نے قومی اسمبلی کی بھی 15 نشستیں جیتنی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے نتائج کے فارم 47 جاری کر دیے۔ 22 میں سے 15 نشستوں پر ایم کیو ایم پاکستان نے کامیابی سمیٹ لی۔ 7 نشستوں پر پیپلز پارٹی کا تیر نشانے پر لگا۔ عام انتخابات میں کراچی سے ایم کیو ایم پاکستان نے میدان مار لیا، تیر بھی کئی نشانوں پر لگا۔ قومی اسمبلی کی 22 میں سے 15 نشستوں پر ایم کیو ایم کامیاب، پیپلز پارٹی 7 نشستوں پر جیت گئی۔ N229 سے پیپلز پارٹی کے جام عبد الکریم 55,832 ووٹ لے کر کامیاب۔ N230 سے پیپلز پارٹی کے سید آغا رفیع اللہ 32,072 ووٹ لے کر جیت گئے۔ N231 سے پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ 43,634 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ N232 سے ایم کیو ایم کی آسیہ اسحاق 88,260 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہری۔ N233 سے ایم کیو ایم کے جاوید حنیف 1,03,967 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ N234 سے ایم کیو ایم کے عامر معین پیرزادہ 73,687 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ N235 سے ایم کیو ایم کے محمد اقبال خان 20,185 ووٹ لے کر فاتح بنے۔ 36 سے ایم کیو ایم کے حسان صابر 38,871 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ N237 سے پیپلز پارٹی کے اسد عالم نیازی 40,836 ووٹ لے کر جیت گئے۔ N238 سے ایم کیو ایم پاکستان کے صادق افتخار 54,884 ووٹ لے کر فاتح قرار۔
NA-239 से पीपल्स पार्टी के नबील गबूल 40,077 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA-240 से MQM के अरशद वोहरा 30,573 वोट लेकर जीत गए। NA-241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब करार। NA-242 से MQM के मुस्तफा कमाल 71,767 वोट लेकर जीत गए। NA-243 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल 60,266 वोट लेकर फातेह बने। NA-244 से MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार 20,048 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA-245 से MQM पाकिस्तान के सैयद हिफ्जुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA-246 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर कामयाब। NA-247 से MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन 64,945 वोट लेकर जीत गए। NA-248 से MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 1,03,000 से जायद वोट लेकर फातेह बने। NA-249 से MQM के अहमद सलीम सिद्दीकी 77,529 वोट के साथ कामयाब हुए। NA-250 से MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती 79,925 वोट लेकर जीत गए। कराची के नताइज मुस्तरद, कई सियासी मैदान में आ गई। जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक का इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना। जमात इस्लामी का आज शहर के 8 मुकामात पर धरने का ऐलान। JUI के नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने पीर से एहतजाज की कॉल दे दी। आम इंतखाबात में शिकस्त खाने वालों के धांधली के इल्जामात। शहर कायद कई उम्मीदवारों ने नताइज को अदालत में चैलेंज कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। हारने वाले उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। NA-248 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। खालिद मकबूल की कामयाबी को आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद ने बैरिस्टर अली ताहिर तोसत से चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर अली ताहिर ने दरख्वास्त में वाजे किया कि फॉर्म 45 के तहत अरसलान खालिद बड़े मार्जिन से कामयाब हो रहे थे और उन्हें फॉर्म 47 मुरतब करते वक्त तमाम उम्मीदवारों और उनके नुमाइंदगान को बाहर निकाल दिया और उन्हें नताइज तब्दील करके खालिद मकबूल सिद्दीकी को 1,03,082 वोट से कामयाब करार दे दिया। बैरिस्टर अली ताहिर ने दरख्वास्त की कि खालिद मकबूल को कामयाब करार देने से मुतालिक RO की जानिब से जारी करदा फॉर्म 47 कलअदम करार दिया जाए। हलीम आदिल शेख ने NA-238 के इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख ने बैरिस्टर अली ताहिर के तोसत से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने 31,000 से ज्यादा वोट लिए। फॉर्म 47 में नताइज तब्दील करके MQM उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। MQM उम्मीदवार की कामयाबी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। PS 98 के उम्मीदवार जानशेर जुनेजो ने भी इलेक्शन नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जानशेर जुनेजो ने मौकिफ अपनाया कि फॉर्म 45 के मुताबिक मैंने 12,167 वोट हासिल किए। MQM के उम्मीदवार अरसलान परवेज ने 1,772 वोट लिए हैं। फॉर्म 47 में MQM के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया है। अदालत से दरख्वास्त है कि फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी के लिए कौमी और सिंध असम्बली की 39 मखसूस नशिस्तें हासिल करने की राह हमवार हो गई। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में खवातीन की 20, कौमी असम्बली की 10, जबकि अक़लियतों की सिंध असम्बली में 6, कौमी असम्बली में 3 मखसूस नशिस्तें हासिल कर लेगी। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से 39 मखसूस नशिस्तें समेटने की पोजीशन में आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली में ताज़ा तरीन नुमाइंदगी के हिसाब से शगुफ्ता जुमानी, शाहिदा रहमानी, सैयदा शैला रजा, मेहताब अकबर राशिदी, मुसरत मेहसर, महरीन रज़ाक भुट्टो, शाजिया सोबिया, नाज बलोच, मुदस्सिर सहर कामरान और शर्मिला फारूकी रुकने कौमी असेंबली बन जाएंगी। सिंध असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर सीमा खुरम, तंजीला, उम्मे हबीब, कमरानी, रेहाना लगारी, यास्मीन शाह, नुज़रत पठान, सैयदा मारवी राशिदी, सादिया जावेद, फरजाना हनीफ बलोच, शजीरा लगारी रुकने असेंबली बनेंगी। हिना दस्तगीर, रुखसाना परवीन शाह, हीर सोहो, निदा खोड़ो, सायमा आगा, रुमूसा सबाहत, उरूबा रब्बानी, खैरुन्निसा मुगल, मलिया मंजूर, शाजिया उमर और शाहीना शेर अली बलोच भी रुकने सिंध असेंबली बन जाएंगी। सिंध असेंबली में अक़लियतियों की मखसूस नशिस्तों पर 6 अरकान मुंतखब होंगे, जिनमें राना हमीर सिंह सोढ़ो, मुकेश कुमार चावला, डॉक्टर खोटो मिल जीवन, ज्ञान चंद यसरानी, डॉक्टर श्याम सुंदर उडवानी और एंथोनी नवीद शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध से कौमी असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों पर रमेश लाल, नवेद आमिर जीवा और डॉक्टर रमेश कुमार मनकावानी अरकीन असेंबली बन जाएंगे। अगर आजाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए तो पार्टी मजीद नशिस्तें हासिल कर सकती है। आजाद नोडियो, सिटी 21।
सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की सादा अक्सरियत। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। MQM पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। में तीर निशाने पर पतंग की भी उड़ान, हुकूमत कौन बनाएगा, नंबर्स गेम शुरू हो गया। आम इंतखाबात में सिंध में अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली की 130 में से 84 नशिस्तें हासिल कर ली। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने 11 और दीगर आजाद ने 3 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 2-2 नशिस्तें हासिल कर पाई। इस तरह देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों की नशिस्तें मिला ली जाएं तो 46 बनती हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निफ्स हैं। अगर ये सारी जमातें इत्तेहाद बना लें तो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ सकती। सादा अक्सरियत के लिए मखसूस नशिस्तें मिलाकर असेंबली 85 नशिस्तें दरकार होती हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी मखसूस नशिस्तें मिलाकर सादा अक्सरियत से भी ज्यादा नशिस्तें हासिल कर लेगी। इस तरह कहा जा सकता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी तन्हा हुकूमत बनाएगी। सनतकारों की आम इंतखाबात में जीतने वाले सियासी जमातों को मुबारकबाद। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप के मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि मुल्क मुश्किल में है, सियासी जमातें मिलकर मिसाक़े मईशत पर काम करें। अशरफ खान की रिपोर्ट। आम इंतखाबात में जीतने वालों के लिए मुबारकबाद का पैगाम। ताजिरों ने वादे भी याद दिला दिए। और जो नुकसान वाले इदारे हैं, गवर्नमेंट के 80 इदारे हैं और ये तकरीबन 1200 अरब रुपए साल का चूसते हैं, तो इनको हमें बंद करना होगा और इनको हमें प्राइवेटाइज करना होगा। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन ने कहा कि अब अवाम और सनतकारों की नजरें आने वाली हुकूमत पर जमी रहेंगी। अवाम अब बिजली और गैस की कीमत में कमी के लिए रिलीफ के मुंतजर हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आम इंतखाबात के हवाले से सिटी 21 के प्रोग्राम बनाम सरकार में इनका पर्सन शाइस्ता रजा के साथ आवाम की दिलचस्प गुफ्तगू। आइए देखते हैं। तो रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिया था मुस्तफ़ा कमाल ने, 23 में से 20 हमारी हैं। तो अभी आप बताइए, इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, रिजल्ट आया नहीं, आपने पहले बोल दिया 23 में से 20 हमारी हैं। तो ये तो 100% धांधली है ना। अवामी एजेंडा तो किसी पार्टी के पास है ही नहीं। अगर अवामी एजेंडा होता तो फिर अवाम की बात होती, पेट्रोल की बात होती, रोज़गार की बात होती, सड़कों की बात होती, नौजवानों की। आपको पता है हमारे नौजवान कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो अवामी एजेंडा तो किसी के पास भी नहीं है। आवाम के लिए जो बेनिफिट चलते आ रहे वही होंगे, मेरा ख्याल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। बस ये कि उम्मीद रख सकते हैं, मगर होना वही है जो बरसों से चलता हुआ आ रहा है, वही होना है। बस अल्लाह रहम करे, कोई अच्छा हुक्मरान आए जो हमारे मुल्क के लिए, अवाम के लिए बेहतर हो। जो भी बैठे, अभी जो सियासत में जो भी हो रहा है, समझो एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिल बैठ के हल करेंगे मसला तो हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। अवाम ने मसाइल के हल की उम्मीदें लगा ली। NA 234 PS 94 का इलाका कुरंगी 2.5 नंबर मसाइल का गढ़ बना हुआ है। सिवरेज का नाकिस निज़ाम है और कचरे के ढेर हैं। गैस और पानी की किल्लत ने मकीनों की जिंदगी दुश्वार कर रखी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात मुकम्मल, जीतने वालों का इम्तिहान, अवाम के बुनियादी मसाइल के हल का इम्कान। कुरंगी में MQM ने मैदान मार लिया। अब इलाके के लोग अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए उम्मीद लगा ली है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस की बिला तातुल फरामी और पानी की किल्लत से परेशान इलाका मकीन कहते हैं कि इस बार वोट अवामी नुमाइंदों को दिया है। उम्मीद है कि MQM पाकिस्तान इलाके के बुनियादी मसाइल हल करेगी। इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या चीज़ ऐसी डिस्टर्ब कर रही है हमें। तो लाइन सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का ये डी पे यहाँ पर खड्डे वगैरह इतने ज़्यादा कि अगर यहाँ मलबा वगैरह भरा जाए हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि आवाम के तौर पे तो कोई वो वसाइल वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट के लेवल पे अगर कुछ किया जाए यहाँ पर तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी इस बात पे हो सकता है। 2-3 साल से यही देख रहा हूँ। ऐसी यहाँ रोड का हाल है, गलियों का भी बुरा हाल है। यहाँ पर कभी मैंने देखा नहीं अभी तक काम करते हुए। मसाइल में घिरे हल्के से कामयाब होने वाले MQM के उम्मीदवारों के लिए इलाके के मसाइल हल करना एक चैलेंज होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21।